Hello students, how are you? So students, today we will discuss mirror formula and magnification. Student, this is very important topic because the concept of this topic will use in your numericals. ओके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों टॉपिक प्रॉपर्ली आने चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं होंगे. Okay, so focus properly on these topics. Okay, before this topic we will discuss the sign convention of the mirror. ठीक है, कैसे अपन साइन लेते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले. Okay students, so let's how can we determine the sign of the mirror. Suppose this is the mirror. This is the concave mirror. Okay, this is the principal axis. ठीक है, टॉपिक है आपके पास साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन. ठीक है, क्या आपको ये दिख रहा है कैमरे में? यस. ओके, साइन कन्वेंशन अपन देखने वाले हैं. दिस इज द कॉन्केव मिरर. ओके, अब ध्यान रखना भी साइन कन्वेंशन चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स में, दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम. ठीक है, समझते हैं. दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द फोकस. ओके स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, we know that the first line will be parallel to the principal axis. If you form the image of this object, okay, this is the AB object. Okay students, and this is the height of this object. This is height h. ठीक है, height of the object will be denoted by h. Height of object. Okay, this is the h. Okay, this is the parallel line. Okay, and this parallel line will pass through the focus. Okay, now this is the second line which pass through the focus. If this line will pass through the focus, then after reflection it will become parallel to the principal axis. Okay students, and this is the A dash B dash. Okay, this is the height of the image. A dash B dash, okay, is called height of the image. This is the H dash. This is H dash. ठीक है भाई, A को तो H को अपन ने क्या कहा? This is the AB. Okay, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं. This is AB. Okay, and it is denoted by h. ठीक है, now height of object, image, height of image. Okay, this is A dash B dash, A dash B dash. Okay, and this is denoted by h dash. ठीक है भाई, अपन ने इमेज फॉर्मेशन की थी, उसमें क्या कहा था? जहां भी रे मीट करेंगी, ठीक है, देन दे विल बी द इमेज फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाली इमेज? दिस इज द A dash B dash. ओके, एंड इट द हाइट ऑफ द इमेज इज डिनोटेड बाय h dash. Any doubt? Okay, then we can denote the distance of the object. This is the object. This is the object. Okay, distance of the object from the mirror. Okay, this is the mirror and this is the pole. तो इस पोल से अपने पास ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, इसको अपन यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं किससे? दिस इज कॉल्ड u. ओके, दिस इज कॉल्ड u. वी कैन से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, from mirror. Okay, this is denoted by u. Okay, small u. Understood? Now the distance of the image, this is the image.
this is the image, and distance of the image from the mirror, okay, this distance, okay, and it is denoted by v, okay, जहां भी इमेज बने उसके डिस्टेंस मिरर से आप क्या कर लो, मेजर कर लो, वो क्या होगी अपने पास v, okay, it is denoted by the v, distance of the image, distance of the image from mirror, okay, and it is denoted by v, okay students. So सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि h क्या है, this is the height of the object, this is the height of the image, this is denoted by h dash, okay, and this is the distance of the object from the mirror, this is u, and distance of the image from the mirror is v. Any doubt? Now how can we determine the sign convention? Students, आप सभी को ग्राफ बनाना आता है obviously, ठीक, तो ग्राफ में अपन कैसे लेते थे, this is the origin, okay, and this is the positive x and this is the negative x, this is the positive y and this is the negative y. क्या ऐसे लेते थे अपन, ऐसे लेते थे क्या, okay, so same thing, okay, same thing, this is the origin, this pole is the origin, okay, and the distance left hand side to this origin will be denoted by the negative sign, will be denoted by the negative sign, okay, and the distance is above the origin, means above the pole, denoted by the positive, okay, and the distance below the principal axis will be denoted by the negative, okay, negative side. अब किस किस को अपन इसे मेजर करते हैं वो ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके. अगर अपन बात करें सबसे पहले हाइट की, ओके, दिस इज द हाइट, हाइट को अगर अपन बात करें तो अपन डिनोट करते हैं वर्टिकली, कैसे, वर्टिकली मीन्स अबोव एंड बिलो, अबोव एंड बिलो हाइट. जैसे अगर मैं बात करूं हाइट यहाँ पे कौन कौन है, देखो, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, ओके. इसको वर्टिकली अपन देखें, वर्टिकल का मतलब क्या है, above the line और below the line, okay, above the line and below the line. इसको अपन horizontally नहीं देखेंगे, किसको, हाइट को, okay students. So we know that this height of the object is above the origin, above the principal axis, okay. So we can say that the height of the object will be positive in nature. भाई साइन में अपने साइन कन्वेंशन क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि अबव द क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके स्टूडेंट्स. सो एच, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दिस इज प्लस एच, ओके, दिस इज द पॉजिटिव एच बिकॉज दिस इज द अबव द लाइन. समझना है, टॉपिक समझना है कि अबव द लाइन अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव एच, ओके, एंड बिलो द लाइन, बिलो द लाइन का मतलब क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड दिस इज द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस विल बी नेगेटिव इन नेचर, ओके, दिस विल बी नेगेटिव, ओके, सो दिस विल बी माइनस एच डैश, ओके स्टूडेंट्स. नाउ हॉरिजॉन्टल के लिए अपन क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल, ओके, वी कैन से डिस्टेंसेस, ओके, डिस्टेंसेस, जो भी अपने पास डिस्टेंस होती है, अब वो डिस्टेंस अपन कैसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टली, ओके, चाहे डिस्टेंस अपने पास किसकी हो, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ओके. सो these will be denoted, these will be considered as a horizontal line, horizontal line, okay students. So horizontal का मतलब क्या है, this is the origin, okay. So the left hand side of the distance will be denoted by the negative sign and the right hand side distance will be denoted by the positive sign, ठीक है. तो अब देखो राइट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव तो कुछ आना नहीं है इस कंडीशन में, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. Obviously we know that this is the origin,
Okay, so the left hand side, obviously we know that the distance of the object from the mirror is left hand side. Okay, so this will be negative. बात समझ में आ रही है सभी को? Distance of object from mirror. Okay, so this will be minus u. Okay, now distance of the object from distance of the mirror from the object. Image from the mirror. Okay, for this condition this will be negative because the distance of the image from the mirror is left hand side. Okay, so this will be negative. बात समझ आ रही है सभी को? इसको अपन कैसे लिखेंगे? हॉरिजॉन्टली. Okay, and this will be vertically. Height will be measured vertically and distance will be measured horizontally. बात समझ आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? सपोज अगर अपने पास इमेज इधर बने, अगर उनका इमेज किधर बने? राइट हैंड साइड. इमेज यहां नहीं बनी, कहां बनी? यहां पर बनी. ओके, नाउ वी विल टेक द v पॉजिटिव. v क्या होगा अपने पास? पॉजिटिव होगा. ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या होगा अपने पास? डिस्टेंस. दिस इज द डिस्टेंस, सो v विल बी पॉजिटिव. ओके, एंड इफ दिस इज द अबोव द लाइन, दिस इज अबोव द लाइन, ओके, देन द h डैश will be positive because this is above the line. Height अपन कैसे लेते हैं? Vertically. So this h dash will be positive. बात समझ आ रही है? इसको अपन क्या लिख देंगे? पॉजिटिव ले देंगे. बात समझ आ रही है क्या सभी को? कि भाई अपने पास साइन कन्वेंशन के दो चीज आपको ध्यान में रखनी है. हाइट विल बी टेकन वर्टिकली एंड डिस्टेंस विल बी टेकन हॉरिजॉन्टली. अब आपको क्या ग्राफ लगाना है इसके अंदर. ठीक है, बोलो कर सकते हैं? तो इस तरह से अपन को ये देखना है. बोलो कर सकते हैं क्या? चलिए अब आगे अपन बात करते हैं mirror formula. This is very important. Mirror formula. So let's discuss what is the mirror formula. This is used to solve the numericals. Okay, students. Mirror formula. Yes, what is the mirror formula? Mirror formula is 1 upon f. Okay, 1 upon f is equals to 1 upon v. Okay, plus 1 upon u. This is the mirror formula. क्या ये आपको कैमरे में दिख रहा है क्या? Yes. Okay, this is the 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Where this is very important because board एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला. तो आपको मिरर फॉर्मूला लिखना तो इस तरीके से देखो कैसे. Where f is focal length, where f is focal length of mirror. Okay, v is distance of object from mirror. Okay, and the u is, sorry, this is the distance of the image. This is the distance of the image because this is v. V is the image. Okay, and this is u. So this is the distance of the object, okay, from the mirror. Okay, this is the mirror formula and this is the way of writing in the copy, board exam copy. Okay, so इसको आप नोट कर लें. अब अपन इसको डिराइव करने जा रहे हैं. कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे? So let's see how can we prove it. Okay, students, proof.
ओके, तो सबसे पहले इसके लिए अपने एक डायग्राम बनाने वाले हैं. दिस इज द मिरर. Okay, this is the mirror, convex mirror. Okay, and this is the principal axis. Okay students, this is the focus, this is the center of curvature. Okay, now the object is placed at this point, means बिफोर द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां पर पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ओके, दिस इज कॉल्ड ए एंड बी एंड इट आउट. दिस इज द ए बी. थोड़ा सा और इसको अपन बड़ा बना देते हैं. दिस इज द ए बी. ओके, एंड दिस इज द पैरेलल लाइन विच विल पास थ्रू द फोकस एंड इट आउट. Now the second ray will pass through the focus and it will become parallel. Okay students, because we know that if the object is placed before the center of curvature, then the image will form between the C and F. ये अपन जानते हैं. अगर आप इसको स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर्ली इसके मिड में बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अपन डिनोट कर दिया. दिस इज द A डैश एंड B डैश एंड आउट. बोलो इसमें कोई डाउट है? चलिए, अब अपन जो बाकी अपने पास है पॉइंट उनको भी अपन नेम देते हैं. दिस इज द ए बी. सपोज दिस इज द पी, दिस इज ओ एंड दिस इज क्यू. एनी डाउट? बोलो इसमें आपको कोई डाउट है? ठीक है, चलिए अब अपन इसको डेरिवेशन में कैसे लेंगे समझते हैं. ओके, सबसे पहले अपन ने क्या कहा? ठीक है, लेट object is placed before या फिर कह सकते हैं between infinity and center of curvature. Okay, and image is formed between सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. क्या सही बात है भाई? इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपन ने यहाँ पे नोट कर लिया. ठीक है, अब पूरी मैथ अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. मैथ में हो सकता है अभी तक आपने सिमिलरिटी नहीं देखी हो. सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी तो अपन पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, बट द सिमिलरिटी चैप्टर इज इन योर 10th क्लास. ओके, तो हो सकता है आपने अभी तक ये स्टडी नहीं की हो, लेकिन बेसिक जो है, ठीक है, हल्का जो भी अपना इसमें यूज होने वाला वो मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, तो देखते हैं इसको अपन. सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? वी विल टेक द ट्रायंगल ए एफ बी. ओके, वी विल टेक द ट्रायंगल ए एफ बी. दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल ए एफ बी. ओके, एंड द सेकेंड ट्रायंगल विल बी एफ ओ क्यू. इन दोनों ट्रायंगल को अपन लेने वाले हैं. बात आ रही है समझ में? इनको अपन क्या करेंगे? सिमिलर प्रूव करने वाले हैं. ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल एफ ओ क्यू. ओके, ट्रायंगल एफ ओ क्यू. इन दोनों ट्रायंगल में देखो सिमिलरिटी है क्या? सिमिलरिटी का मतलब है कि अपने पास सपोज करो दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल. ठीक है, द टू polygons which has
सेम शेप बट डिफरेंट साइज। शेप तो सेम हो बट साइज क्या हो डिफरेंट। देखो ये अपने पास क्या है, लार्ज है, दिस इज स्मॉल, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं सिमिलरिटी। दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, सेम साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो। अगर मैं इसको बिल्कुल इसके इक्वल बना दूं तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। सो दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं। सपोज दिस इज द ए बी एंड सी, दिस इज द पी क्यू एंड आर, ठीक है। ये अलग टॉपिक है भाई, ये अलग से करना है अपन को, रफ में करना है, क्या समझना है आपको इसको, ठीक है। if we say that this angle is equals to this angle, okay, if the angle A is equals to angle P, okay friends, and the angle C is equals to angle R, angle C is equals to angle R, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल, ओके, एंड ये अपने पास क्या है, इक्वल है, then the third angle will be automatically equal। समझे। तो इसको अपन को अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं। अगर अपने टू एंगल इक्वल बोल दिए कोई भी दो ट्रायंगल्स के, then both triangle will be similar। this is the A B and C similar to triangle P Q R। अब देखो यहाँ पे लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अपन कैसे लिखते हैं। क्या ए ट्रायंगल अपने पास P के इक्वल है, तो एक सबसे पहले आ रहा है देखो इस ट्रायंगल में, तो P भी देखो सबसे पहले आना चाहिए। इन दोनों का रिलेशन है कि नहीं है, कि दोनों क्या है, इक्वल है, ओके। नाउ द C इज इक्वल टू R, ओके, सो दिस इज C एंड दिस इज R। देखो C सबसे लास्ट में आया तो R भी सबसे लास्ट में आना चाहिए। इन दोनों का अपने पास क्या है, रिलेशन, और B इक्वल टू Q, इन दोनों का रिलेशन आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अपन को ये क्या करना है, नोट करना है। और अगर अपने पास ट्रायंगल सिमिलर होंगे देन द करस्पॉन्डिंग साइड विल बी प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही है। प्रोपोर्शनल साइड्स कौन सी होती है, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस, ओके। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, BC, एंड इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी बताओ, QR। बोथ विल बी इक्वल, सो बोथ विल बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन से द BC अपॉन QR, दोनों क्या होंगे, रेशो में इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आ रही है क्या बताओ, ठीक है। क्या एंगल C और R इक्वल है, दिस C इज इक्वल टू दिस R, सो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, AB, दिस इज द AB, ओके, एंड दिस इज द R, इसके सामने वाली कौन सी होगी बताओ, PQ, ये भी आपस में इक्वल होगी। तो बचा हुआ एंगल कौन सा है बताओ, ये, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है बताओ, AC, ओके, और इसके सामने वाली साइड कौन सी बताओ, PR। तो ये क्या होंगी बताओ, प्रोपोर्शनल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में अपन क्या करते थे, इक्वल कर देते थे, बट इसमें इक्वल नहीं होगी, क्या होगी, प्रोपोर्शनल। इक्वल थोड़ी है भाई, छोटी है ना, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये क्या होगी, 4 होगी। अगर ये अपने पास 10 है देन दिस विल बी 5। रेशियो इक्वल होना चाहिए, देखो रेशियो इक्वल हो गया ना, ओके, एंड इफ दिस विल बी 12 एंड दिस इज 6, ओके। तो ये अपने पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि सिमिलरिटी में काम में आता है। साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो यही चीज इसमें अपन करने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल होने वाले हैं वो अपन देखते हैं। सपोज ऑब्वियसली वी नो दैट दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। देखो ट्रायंगल कौन सी लिया अपन, AFB, ओके, एंड द सेकंड ट्रायंगल इज FOQ। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड ट्रायंगल। तो इसमें देखो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है। एंगल AFB इज इक्वल्स टू एंगल OFQ, दिस इज राइट। दोनों क्या है, इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी कैन से वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो दिस इज द AFB इज इक्वल्स टू ट्रायंगल OFQ, by vertically opposite angles, okay students। now we know that ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट अगर अपन रखते हैं तो ये हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ओके। सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, एनी डाउट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं
तो स्टूडेंट ये चीज आपको ध्यान रखनी कि यहाँ पे जो मिरर है जितना अपन राउंडली शो कर रहे हैं ना, एक्चुअल में इतना राउंड होता ही नहीं है। ओके, सो दिस विल बी टेकन एज ए स्ट्रेट लाइन, इसको अपन क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन मानेंगे, ध्यान रख लेना। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन इसको अपन अज्यूम करेंगे और यहाँ पे भी इसको क्या मानेंगे कि स्ट्रेट लाइन अज्यूम करेंगे। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, सो बोथ हैव द 90 डिग्री एंगल। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल, तो इनके बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। ओके, सो दिस इज द 90 डिग्री, क्या दोनों 90 डिग्री हैं? ओके, सो वी कैन सी दिस एंगल BAF, एंगल BAF is equals to angle FOQ, angle FOQ. ओके, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। क्या अपन ने दो एंगल इक्वल कर दिए? अगर दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, सो दिस इज द ABF इज सिमिलर टू ट्रायंगल। सिमिलर का साइन देखो इस तरीके से होगा, ध्यान रख लेना, लाइक दिस। ओके, कन्वेंसी में कैसे लेते थे, यूं। ठीक है, इसमें क्या करना है, दोनों लाइंस आपको हटा देनी है। ओके, अब देखो ए के इक्वल कौन है, ए के इक्वल अपने पास देखो, दिस इज द ए एंगल, ये एंगल किसके इक्वल था, ओके। ओके, सो ए एंगल ओ के इक्वल, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले ओ। देखो ए के साथ क्या आना चाहिए, ओ। ओके, नाउ एफ के साथ में क्या आना चाहिए बताओ, एफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। सो यहाँ पे क्या ले लिया अपन एफ, देखो लास्ट में ना एफ, तो यहाँ पे अपन लास्ट में ले लिया। बचा हुआ एंगल कौन सा आ गया, क्यू। ओके, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये एंगल ये भी तो इसके इक्वल होगा, बचा हुआ थर्ड एंगल है। ओके, बी एंगल इज इक्वल्स टू क्यू, सो अपन कह सकते हैं दिस इज द क्यू एंगल। ओके, सो बोथ आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरियन। ये दोनों क्या होगा बताओ, सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए, बस यही चीज अपन को करनी थी और एकदम इजी है। कैसे समझते हैं अपन, वी नो दैट दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइड लेनी कौन कौन सी है वो अपन को समझना है। दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दिस इज द OQ, ओके, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। तो यही लाइंस अपन को लेनी है, ये वाली लाइन अपने कोई काम की नहीं है, ध्यान रख लेना भी। दिस लाइन इज नॉट यूजफुल फॉर अस। ओके, सो अपन यहाँ पे एंगल क्या लेंगे, अपन जानते हैं ए एंगल, सॉरी दिस इज एफ एंगल, ओके, एंड इसकी जो फ्रंट साइड है वो कौन सी बताओ, ए बी। ओके, एफ के फ्रंट साइड कौन सी होगी, ए बी। सो ए बी अपॉन इस वाले ट्रायंगल में एफ के फ्रंट साइड है कौन सी, ए बी, और इस वाले ट्रायंगल में एफ के फ्रंट साइड कौन सी बताओ, ओ क्यू, ओ क्यू। सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट की बात करें, अगर मैं बात करूं, देखो ये साइड तो अपन को लेनी नहीं है, इसके सामने वाली अपन को कौन सी लेनी है, ये वाली। तो ये कौन किसके सामने है, बी के सामने। ओके, तो इसके सामने अपने पास क्या आएगा बताओ, ए एफ। इस एंगल के सामने कौन सी साइड आएगी, ए एफ। ओके, एंड इस एंगल के सामने बताओ कौन सी साइड आएगी, एफ ओ। सो ए एफ अपॉन एफ ओ। बोलो बात आ रही है समझ में, ए एफ अपॉन एफ ओ। एनी डाउट बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो फटाफट बताओ, बोलो आगे चले। देखो अपने पास क्या हो गया, ए बी अपॉन ओ क्यू, ए बी अपॉन ओ क्यू, ओके, एंड द ए एफ अपॉन एफ ओ। ए एफ क्या है समझना इसको अपन। चलो अब देखो ध्यान से अपन क्या करने वाले हैं, इसको हटा दें। स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से आराम से समझना है इसको, ठीक है। देखते हैं भाई, ए बी तो ठीक है, ए बी अपॉन ओ क्यू अपन इसको ले लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, क्या इस कंडीशन में ओ क्यू क्या ए डैश बी डैश के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ए बी किसके इक्वल होगा, पी ओ के, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो है दोनों, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, पैरेलल है, तो इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली सारी इक्वल होगी। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अपन ने देखा कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ओके। सो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल, ओके, एंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं बताओ,
क्या इसको अपन ए डैश बी डैश नहीं लिख सकते? बिकॉज ये काम में आएगा भी, इसके अपन को इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द ए बी अपॉन ओ क्यू की जगह अपन ने क्या लिख दिया, ए डैश बी डैश, यहाँ लिख देते हैं बिकॉज ओ क्यू इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो ए एफ क्या है, दिस इज द ए एफ, दिस इज द ए एफ। बोलो सही है बात? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ओके, सो वी कैन टेक द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। एनी डाउट? भाई कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ आप? ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, दिस इज द v। एनी डाउट? बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अभी आपने देखा दिस इज ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर दिस इज u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज v। कर सकते हैं इसको अपन? अब देखो ध्यान से, अगर मुझे AF चाहिए तो F के लिए मैं क्या करूंगा, AO माइनस OF। भाई इस पूरी में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या ये नहीं बचेगा? ओके, सो AF इज इक्वल्स टू AO माइनस OF। we can say this is AO minus OF, then upon F। OF लिखो चाहे FO लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत है इसके में यहाँ तक? चलिए अब अपन वैल्यू पुट कर दें। सो दिस इज द AB अपॉन A डैश B डैश। AO क्या है? AO, दिस इज द AO। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, सो दिस U। एनी डाउट? क्या ये U है क्या, बताओ? बिल्कुल U है। अब एक बात बताओ, अभी जस्ट अपने साइन कन्वेंशन देखा था। साइन कन्वेंशन में अपन ने क्या देखा कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं डिस्टेंसेस, वो क्या होती है, नेगेटिव। तो क्या ये डिस्टेंस ही तो है हॉरिजॉन्टल, तो दिस विल बी नेगेटिव। तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे, माइनस U। एनी डाउट? AO इज द माइनस U, देन ये माइनस अपन ने लिख दिया। OF की बात करते हैं, OF इज दिस इज द OF। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या था अपने पास, फोकस। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको अपन क्या कहते थे बताओ, फोकल लेंथ कहते थे कि नहीं कहते थे? दिस इज द फोकल लेंथ। एनी डाउट? सो अब अपन को क्या चाहिए, देखो अपन ने AO की वैल्यू रखी माइनस U। OF इज दिस इज द फोकल लेंथ, OF इज द फोकल लेंथ। सो अपन जानते ये भी क्या आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है। बताओ कोई दिक्कत है? देखो ये माइनस तो अपन ने नोट किया, नाउ दिस विल बी माइनस F। ओके, आगे देखो FO क्या है, वापिस से फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ। ओके, सो दिस विल बी माइनस F। बोलो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सो दिस इज द AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू माइनस U माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज द माइनस F। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कर सकते हैं। चलिए देखो, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ अभी के लिए, आप इसको नोट कर लें, पहले ही इसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं, वी विल टेक, इसको हटा देते हैं। ओके, नाउ वी विल टेक दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज सेकंड ट्रायंगल, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज सेकंड ट्रायंगल। ओके, इन दोनों को भी सेम मेथड से क्या करने वाले हैं बताओ, सिमिलर। देखो अपन जानते हैं दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री, वन एंगल। ओके, दिस एंगल कौन सा, A डैश F डैश B डैश, A डैश F B डैश। ओके, इसको हटा दे एक बार। हाँ देखो, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, A डैश F B डैश इज इक्वल्स टू PFO। क्या ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। ओके, तो दो एंगल क्या हो गए अपने पास, इक्वल हो गए। अब इसको अपन पूरे मेथड से नहीं करेंगे, अपन इसको डायरेक्ट बोलेंगे सिमिलरली।
ओके सिमिलरली ट्रायंगल POF सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से करना पड़ेगा ये चीज अपन को। P एंगल किसके इक्वल होगा बताओ? देखो अपन ने क्या कहा, A डैश इज इक्वल टू O, सही है बात। O के इक्वल कौन है? A डैश, सही है। F के इक्वल कौन है बताओ? F के इक्वल F है, तो F को अपन ने लास्ट में लिख दिया। सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे? P के इक्वल कौन है बताओ? दिस इज द P एंड दिस इज द B डैश। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ये रॉन्ग लिख देते हो तो भाई आप ये क्वेश्चन सॉल्व, ये जो डेरिवेशन है इसको अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दिस इज द B डैश। एनी डाउट? दिस इज द रूल ऑफ राइटिंग द सिमिलरिटी। इक्वल एंगल के साथ में इक्वल एंगल शो होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप अपन सिमिलरिटी शो करते हैं। ओके, सो वी कैन से द प्रोपोर्शन साइड विल बी प्रोपोर्शनल। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड विल बी प्रोपोर्शनल। अब अपन इसमें भी कौन कौन सी साइड लेने वाले, ध्यान से देखो। अपन लेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स, ठीक है। इस वाली साइड से अपन को कोई लेना देना नहीं है, बात समझ रहे हो? इसको अपन नहीं लेंगे, अपन ओनली क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसके सामने, इसके भाई एफ एंगल के सामने वाला कौन सी साइड बताओ? दिस इज द OP। सो OP, देखो यहाँ पे OP दिख रहा है अपन को। दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू A डैश B डैश। देखो यहीं से अपन कर सकते हैं चीज। दिस इज द OP, सो दिस इज द B डैश A डैश। ओके, वी कैन से दिस इज A डैश B डैश। यहाँ से देखो कि F के सामने अपने पास A डैश B डैश आ रहा है, सो दिस इज A डैश B डैश। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा? देखो ये वाली एंगल, देखो यहाँ से ले लो सबसे पहले, दिस इज दिस एंगल। भाई जो एंगल अपन, जो ट्रायंगल यहाँ लिख रहे हैं उसके नीचे उसी की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, पहले अगर ये पहले लिखा है तो ऊपर क्या आना चाहिए? ये वाली वैल्यू। इसको बाद में लिखा है तो अपन में क्या आना चाहिए? इस ट्रायंगल की वैल्यू। ओके, नाउ दिस इज द P एंगल एंड इसके फ्रंट साइड कौन सी बताओ? FO। ओके, सो FO अपॉन, ठीक है, इसके इक्वल कौन था? B डैश। भाई इसके इक्वल देखो P के इक्वल कौन है? P के इक्वल है B डैश। ओके, तो यहां से अपन यहां से भी सोच सकते हैं। देखो FO आया, दिस इज द OF, तो यहां से क्या लोगे? A डैश ऑफ F, A डैश F। एनी डाउट? स्टूडेंट्स ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, दिस इज द A डैश F। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपने सिमिलरिटी पढ़ी नहीं है अभी तक, ठीक है, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी। और वैसे आ जाएगा कहीं भी समझना, अगर ध्यान से देखोगे तो। अगर एक बार में नहीं आया तो उसको आप रिपीट करें। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द OP। अब देखो OP क्या है? दिस इज द OP। क्या ये OP अपने पास क्या AB के इक्वल होगा? जैसे अपन लास्ट टाइम इसको इक्वल किया था, वैसे अपन इस बार क्या करेंगे? OP इज इक्वल टू AB। ओके, सो OP की जगह अपन क्या लिखने वाले हैं बताओ? AP। एनी डाउट? सो दिस इज द AB एंड दिस इज द A डैश B डैश is equals to, okay, this is the FO and this is the A dash F। FO क्या है बताओ? फोकल लेंथ। दिस इज द FO, दिस इज द FO, ओके, एंड दिस इज द फोकल लेंथ, सो दिस विल बी माइनस F। माइनस क्यों है? बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड में है। साइन को वैसे साथ में लगाते हुए चलो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द A dash F। A dash F क्या है? ये वाली वैल्यू देखो यहां से, दिस इज द A dash F, A dash F, ठीक है। अगर इसको फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? इस पूरी में से क्या कर दो? इसको माइनस कर दो, मीन्स A डैश O, ठीक है। चलो इसको अपन बाद में लिखेंगे, पहले अपन लिखेंगे इसको FO, ऐसे रहना दे बार के लिए, ठीक है। A डैश O, भाई A डैश F फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? A डैश O माइनस FO। बोलो कर सकते हैं क्या? FO आप क्या कर दो? माइनस कर दो। चलिए, सो दिस इज द AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू FO। FO इज द फोकल लेंथ, दिस इज द माइनस F। ओके, A डैश O, A डैश O, दिस इज द A डैश O and this A dash O is equals to V। This is the length of the image from the mirror. Okay, so this will be minus V। Okay, then minus FO। FO की वैल्यू बताओ कितनी है? FO की वैल्यू क्या है अपने पास? F। So this will be minus F। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? कर सकते हैं। So
ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन दिस विल बी माइनस वी एंड माइनस माइनस प्लस एफ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी को? अब देखो ध्यान से कि अपने पास ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड दिस इज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं? इक्वल है। ओके, सो बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इसको अपन यहां लिख रहे हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। भाई अगर अपने पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा? ओके, सो वी कैन राइट माइनस यू प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या मैं इसको एफ माइनस यू नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। देखो इसको अपन यूं लिखे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। भाई एफ प्लस का है, सो दिस इज द एफ, यू माइनस, सो दिस इज माइनस यू, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज माइनस एफ इज इक्वल्स टू, ओके, इसको देखो, दिस इज द माइनस एफ, तो ये माइनस एफ, ओके, एंड दिस इज अगेन एफ माइनस वी। क्या लिखेंगे इसको अपन? एफ माइनस वी। एनी डाउट स्टूडेंट्स? सो क्रॉस मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो, बोलो कर सकते हैं। सो दिस विल बी, अगर इसको इससे करते हो आप तो देन दिस विल बी एफ स्क्वायर, ओके, देन एफ, चलो इसको पहले अपन लिख लेते हैं, कंफ्यूज मत होगा, एफ माइनस यू एंड दिस इज द एफ माइनस वी, ओके, एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस एंड दिस विल बिकम एफ स्क्वायर। एनी डाउट? सो एफ को एफ से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी एफ स्क्वायर, देन माइनस एफ को आप करेंगे माइनस वी से, okay, so this will be minus fv, okay, now multiply the minus u to f, so this will be minus fu, okay, now multiply the minus u to minus v, so minus minus plus and this is the uv, okay, and this is equals to f square। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? चलो यहीं पे लिख लेते हैं इसको भी अपन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ओके, दिस इज एफ स्क्वायर स्टूडेंट, दिस इज एफ स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, क्या अपने पास अगर मैं इस एफ स्क्वायर को उधर ले जाऊं, ले जा सकते हैं क्या बताओ? सो दिस विल बी माइनस एफ वी माइनस एफ यू एंड इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस यू वी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। भाई अगर मैं इसको लेके जाता हूँ माइनस प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अरे भी कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अपन यहाँ पे बस एक स्टेप और करने वाले हैं, डिवाइड दिस टर्म बाय एफ यू एंड वी। किससे डिवाइड कर दोगे? एफ यू वी से डिवाइड कर दो, तीनों से डिवाइड कर दो एक साथ। So this will be minus fv, okay, सबको इंडिविजुअली आप डिवाइड कर दो, दिस इज f u and v, okay, then minus f u, okay, this is the u and this is divided by f u v, okay, then plus u v, okay, and this is divided by f u and v, this is equals to 0, ओके, इसको किसके इक्वल कर दिया अपन? 0 के इक्वल। बोलो कर सकते हैं? यहाँ तक कर सकते हैं क्या? अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ से क्या f से f कट हो गया, क्या v से v कट होगा? बिल्कुल कट होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ? -1 अपॉन u, ओके, नाउ अगेन डिवाइड f to f, ओके, एंड u to u, देन we will get the -1 upon u, v, sorry, -1 upon v, and this is the plus, okay, this is the u to u cut and v to v cut, then we will get the 1 upon f is equals to 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई भी दिक्कत है? ठीक है, नहीं होनी चाहिए भी। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करें, दिख रहा है सभी को? यस,
अब देखो यहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, दो भी दोनों क्या है नेगेटिव, उनको क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, देन वी विल गेट 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u, एंड दिस इज द मिरर फॉर्मूला। स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आती है सभी को? ओके, एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से क्या किया अपन ने, दोनों इक्वेशन को पहले क्या कर दिया इक्वल, ओके, देन वी विल गेट द माइनस, दिस इज f माइनस u अपॉन माइनस f एंड दिस इज माइनस f अपॉन माइनस v। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बोथ, दोनों क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर अपन इसको इससे करते दिस इज f स्क्वायर, इसको इससे करते हो तो इस तरह से अपन इसको लिख दिया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई f टू f मींस f स्क्वायर, ओके, f2 माइनस v, f को किससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस v, देन दिस विल बी माइनस fv। ओके, देन माइनस u को f से मल्टीप्लाई किया तो माइनस fu एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी uv एंड इज इक्वल्स टू f स्क्वायर, दिस इज द f स्क्वायर। ओके, नाउ इसको अपन ने क्या किया राइट हैंड साइड में लेके गए, देन दिस विल बी 0, क्या बचा अपने पास माइनस एफ एंड यू वी। नाउ डिवाइड द टर्म माइनस सॉरी एफ यू वी से आप क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर अपन इसे डिवाइड करते हैं तो एफ से एफ कट, वी से वी कट, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी एकदम इजीली, बोल कर सकते हैं। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉपरली इसको आप नोट करें। ओके, अगर आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में लिखें। ठीक है, I will teach you again, okay, this topic. Okay students, so this is the mirror formula, 1/f is equals to 1/v plus 1/u। कर सकते हैं बताओ? चलिए अब अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन